A very warm welcome to my YouTube channel Grow With Me. My name is Anchal Tyagi, and today we would be starting with a very brief discussion on overview and a syllabus discussion for BA Psychology Honors from IGNOU. So, guys, without wasting our time, let's get started. Also, my channel is a very, it is all about educational purpose and it is a very informative and productive channel. So, if you find it helpful in any of the ways, do subscribe and hit the like button also. So guys, let's get started. The very first thing that we should know is that IGNOU stands for Indira Gandhi National Open University. In India and in many other countries abroad, IGNOU is a very prestigious, university for open distance learning mode for university. And right now, it is also offering many courses and many subjects in different fields in different categories, BA, in MAs and PhDs, diplomas, and so on and so forth. Also, because our topic is BA Psychology Honors, I must tell you that it offers BA honors courses also, and BA Psychology Honors is one of them. And let's get started with IGNOU's degree first. See, many students doubted that whether IGNOU's degree is valid or not. If you want to pursue, if you actually want to appear for government exams, will it be acceptable or not? Or if you want to go for abroad for higher studies, will it be acceptable or not? So I must tell you that IGNOU University's degree is valid and acceptable in throughout the India, overseas, and in foreign countries with ease, because IGNOU is a recognized university under UGC. It is also recognized by AICTE, and yes, you can use its degree if you pursue it. If you qualify it, you get the degree. You can use it in your further studies also. So this university is all for open and distance learning mode. So no, it is not a regular college. It is a irregular college, or I should say more appropriate word would be the open university or the distance mode learning. Okay, so the very first thing I would tell you that मैंने यहाँ पे आपके लिए I have provided you certain courses that are basically from social science categorization. Certain are there and many more were there. Okay, so certain are here, and I must tell you that you have very much advantages as per your requirement, because in IGNOU you get the freedom, you get the ability to to be a resident of a place in a other a state, or you can actually access IGNOU anywhere, anytime. Okay, next comes low cost. Your fees for courses like MBA and other courses, or post graduation and graduation BA Psychology Honors, is all at the lowest cost compared to other open universities. Next comes it saves your time, because you are not required, or it is not compulsory for you to attend classes, which saves your time. You can do your part-time jobs or any other thing that you would like to prefer it. And it is basically recognized by UGC and AICTE, as I said earlier also. Its quality is best. It is basically recognized as the best distance learning university in India. Okay, so you get very much advantages as compared to other colleges offering you open or distance learning. Okay, and the very first thing that I noticed is that in DU also very few subjects were provided. A very limited list was provided for to you for distance and open learning. So here is like abundant. You can do any course, any subject in open distance learning mode. Okay, the very first thing is, for the educational qualification to get an admission in IGNOU, you need to be qualified from 10 plus 2 class. Basically, you need to do your 12th from a recognized school, and or a recognized board, I should say, CBSE or other board. You should be 10 plus 2 qualified or passed. Okay, now comes the thing that BA साइकोलॉजी ऑनर्स जो इग्नू में आपको प्रोवाइड एक कोर्स किया जाता है, ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के एक कैटेगरी है, उसके अंदर आता है. ओके,
लेट मी क्लियर माई ड्रॉइंग्स। ओके, सो द ड्यूरेशन जो आपको मिलती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जो ओपन यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है, यहाँ पे जो आपको ड्यूरेशन मिलती है इस पर्टिकुलरली कोर्स के लिए, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए, ये मिनिमम 3 इयर्स की है, जैसे बाकी एवरेज स्टूडेंट करता है, जैसे कि 3 इयर्स का एक कॉलेज होता है, बिल्कुल वैसे आप 3 इयर्स से लेके इसको मैक्सिमम 6 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दे पाते हैं या कोई एक फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं दे पाए, तो आप उसको अगले वाले जो टर्न आएगा अगले सेशन में, मतलब कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप उसको दोबारा दे सकते हैं। तो दैट इज इट, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है आपकी ग्रेजुएशन करने के लिए। 3 साल मिनिमम है और 6 साल तक आप इसको खींच सकते हैं, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होता है ओपन डिस्टेंस के अंदर। नाउ थिंग इज कि यहाँ पे इग्नू में आपको क्रेडिट बेस्ड तरीके से आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट का यहाँ पे मतलब रहेगा कि आपको हर एक जो कोर्स मिलेगा, मतलब आपके जो एक सेमेस्टर के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर जो कोर्सेज होते हैं, तो उनके लिए हर एक स्पेसिफाइड क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे चलता है कि आपके अगर मान लीजिए कोर्स 6 क्रेडिट का है, एक पर्टिकुलर कोर्स, और 1 क्रेडिट का मतलब होता है 30 आवर्स। तो बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर कोर्स को 6 into 30 मीन्स 120 आवर्स आपको उसको पढ़ाई देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा स्टडी के अंदर। दिस इज व्हाट द क्रेडिट सिस्टम बेसिकली मीन्स। दूसरी बात, 2020 जनवरी के अंदर ही इग्नू ने अपने बीए ऑनर्स के ये प्रोग्राम स्टार्ट करे थे। इट इज़ अ वेरी लेटेस्ट टाइम, बहुत ही ज़्यादा पुरानी कोर्सेज नहीं है जो बीए ऑनर्स के इन्होंने इन्वॉल्व करे हैं, अभी भी आए हैं। एंड द थिंग इज दैट बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, हर एक चीज़ का यहाँ पे कोड होता है, हर एक कोर्स का, हर एक प्रोग्राम का। तो आप जो प्रोग्राम करना चाहते हैं या कर रहे हैं बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, उसका जो प्रोग्राम कोड होगा वो है BAPCH। और इसके अंदर आपको टोटल 26 कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें से 18 कोर्सेज आपके जो है साइकोलॉजी के होते हैं, उनको कोर कोर्सेज भी कहते हैं, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के लिए ही होते हैं। 4 आपको इंटरडिसिप्लिनरी मिल जाते हैं, 2 एबिलिटी और 2 स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होते हैं। तो आपको एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ आपको ओपन डिस्टेंस में यहाँ पे पढ़ाई मिलती है। ओके, तो हम आगे चलते हैं और अच्छी तरह इंफॉर्मेशन में घुसते हैं। अब पहली बात आती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिकली इग्नू के अंदर आपको जो है दोनों ही मीडियम, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, दोनों के अंदर ही आपको पढ़ाई मिल जाती है। आप दोनों ही किसी एक मीडियम को चूज करके आप अपनी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग बीए साइकोलॉजी ऑनर्स। अगर आपको बाय चांस अगर आपको चेंज करनी है लैंग्वेज, आप पहले नहीं ध्यान से भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और आपको चेंज करनी है, तो आप जो स्टडी मटेरियल के लिए फी पेमेंट करते हैं, उसके 1 मंथ के अंदर, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको चेंज करना होता है। उसके बाद आपका वही फिक्स हो जाता है जो आपने भरा था। ओके, तो आपको बहुत ही जुडिशियली और बहुत ही अच्छी तरह समझ के करना है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, किस मीडियम के अंदर आप अपनी इग्नू की ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट कम आर थिंग विच इज बेसिकली क्रेडिट सिस्टम। क्या होता है एक क्रेडिट इग्नू के अंदर, मतलब होता है 30 आवर्स ऑफ स्टडी। मतलब आपको 30 आवर्स, एक क्रेडिट का मतलब होता है 30 घंटे आप उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर बिताएंगे। तो हमारा ये जो बीए ऑनर्स का पूरा जो कोर्स है, ये 148 क्रेडिट के ऊपर बेस करता है, 148 क्रेडिट, ठीक है। और इसके अंदर आपके सारे कोर्सेज जितने भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बीए ऑनर्स में, सब कुछ है। तो 148 into 30 आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतने आपको जो है आर्ट्स इग्नू के इस पर्टिकुलर कोर्स को 3 साल के अंदर देने पड़ेंगे। तो क्रेडिट सिस्टम का बस मतलब यही होता है। आगे चलते हैं हम। यस, अब हम बात करेंगे, मेन बात है स्ट्रक्चर की, कि बीए ऑनर का जो प्रोग्राम है साइकोलॉजी बीए ऑनर, तो इसके अंदर आपको मिलता कैसे है पूरा स्ट्रक्चर, कौन से ईयर में आपको कौन सा कोर्स पढ़ना पड़ता है और वो कितने क्रेडिट का होता है। तो आपको जो है इसके अंदर पूरे के पूरे 5 कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो बीए यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको कोर कोर्सेज मिलते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स मिलता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज मिलते हैं, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स मिलता है, और जेनेरिक इलेक्टिव मिलते हैं। ये बेसिकली BAPCH बेसिकली
बीए साइकोलॉजी ऑनर्स जो अगर आप इग्नू से करते हैं, उसका पूरा का पूरा 3 साल का काम है वो आपको 5 कोर्सेज के अंदर डिवाइड किया जाता है। हर एक कोर्स का एक अलग तरीका होगा आपको बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कोर कोर्सेज जो होते हैं। अभी हमने पहला नाम क्या देखा था, कोर कोर्सेज। तो कोर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कौन सी ईयर में कौन सा कोर्स आपको करना पड़ता है, वो देखते हैं। अब आप सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 4 कोर्सेज मिलते हैं। ओके, ये वाले कोड याद करना है आपको यहाँ पे। वो देखिए, बीपीसीसी 101, बीपीसीसी 102, बीपीसीसी 103, बीपीसीसी 104। नाम आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोसाइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये आपको टोटल 4 कोर्स मिलते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। कोर कोर्सेज के अंदर ये आपके 4 कोर्स आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये आपके सेकंड सेमेस्टर का है। सेकंड ईयर में आपको जो मिलते हैं टोटल 6 कोर्सेज, मतलब कि उनके कोड ये है। 104 पे हम रुके थे, तो 105, 106, 107, 108, 109, 1010, ये आपको कोड याद रखने हैं। ठीक है, ये 6 के 6 आपको सेकंड ईयर में कंप्लीट करना होता है कोर कोर्सेज के अंदर। अब बात आती है थर्ड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर के अंदर आपको फिर से 4 कोर्सेज मिलते हैं कोर के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये मिलता है बीपीसीसी 111, बीपीसीसी 112, बीपीसीसी 113 एंड बीपीसीसी 114। नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं और सब कुछ अपना नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं जिसकी मेजरली आपको जो क्लासिफिकेशन दिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको क्रेडिट के साथ दिखाना चाहती हूँ, तो जो कि यहाँ पे है। सी, कोर कोर्सेज जो होते हैं उसका जो क्रेडिट होता है वो 6 क्रेडिट का एक कोर्स होता है। मतलब बीपीसीसी 101, बीपीसीसी 102, बीपीसीसी 103 एंड बीपीसीसी 104 जो आप फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप एंटरटेन करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको कोर कोर्सेज के अंदर ये 4 कोर्सेज मिलते हैं और हर एक कोर्स जो है 6 क्रेडिट का होता है। मतलब 6 × 30 अगर आप कैलकुलेट कर ले तो आपको उतने आवर्स इस पर्टिकुलर कोर्स को एक साल के अंदर देने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हमारा जो है क्लासिफिकेशन होता है। लेट मी मूव अहेड, आप बस नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट कम दिस वन बीपी, ये जितने भी बीपीसीसी 11 है, बेसिकली बीपीसीसी जो कोर कोर्सेज हैं सभी साइकोलॉजी में, वो सारे के सारे 6 क्रेडिट्स के हैं। ओके, ये देखिए सारे 6 क्रेडिट्स के हैं। ये पूरी की पूरी टेबल है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं कि मेरे को फर्स्ट ईयर के अंदर ये कोर कोर्स में ये आएगा और इतने क्रेडिट का हर एक कोर्स होगा। यू कैन नोट इट डाउन, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, लेट मी मूव अहेड एंड दिस। फिर आपका जो आता है वो आता है, सेकंड आता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के अंदर आपको जो है 4 कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी, एक होता है फोरेंसिक साइकोलॉजी, एक होता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एक होता है डिसर्टेशन। तो हर एक कोर्स जो है इसमें भी ये 6 क्रेडिट का होता है। ये देखिए, ये कोड देख लीजिए आप, BPCE 141, BPCE 142, BPCE 143 एंड BPCE 144। सो व्हाट हैपेंस इज, आई विल शो यू कि ये टोटल आपको कोर्सेज मिलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक के अंदर। तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, और बेसिकली ये वाले जो आपको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में मिलते हैं। ये 2 आपको मिलते हैं BPCE 141 एंड 143 आपको 5th सेमेस्टर में मिलेगा, और 6th सेमेस्टर में आपको BPCE 142 एंड 144 मिलेगा, और हर एक 6 क्रेडिट का है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपको दोनों टेबल को क्लब करना है, आगे और पीछे वाले को, और फिर अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये 5th और 6th सेमेस्टर के लिए है, मतलब ये 3rd ईयर के बच्चे के लिए होगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब हमारा आता है नेक्स्ट कोर्स जो आपको डिटेल मिलेगी, वो होगी आपकी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो होता है आपकी कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज को और डेवलप करने के लिए तैयार किए गए हैं इग्नू की तरफ से इस पर्टिकुलर बीए साइकोलॉजी ऑनर के प्रोग्राम में। तो इसके अंदर आपको जो है फर्स्ट ईयर के अंदर ही मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक तो BEVAE 181 EVS होता है बेसिकली, जो हम 5th क्लास तक EVS पढ़ते हैं बेसिकली, क्योंकि कॉलेज का तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, पर EVS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एनवायरमेंटल स्टडीज होता है इसका दूसरा नाम। और एक और जो आपको मिलता है फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपको ही मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर के हैं दोनों, ये दोनों फर्स्ट ईयर के हैं। सेमेस्टर देख लीजिए आप,
फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये मिलता है और सेकंड सेमेस्टर में आपको ये मिलता है। यहाँ पे आपको बेसिकली लैंग्वेज मिल रही है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन लेनी है या फिर हिंदी कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आपको कोई भी एक चूज करनी पड़ती है इन दोनों में से। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो कोई भी एक चीज एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको फिल करते हैं। अब दोनों के बेसिकली एबिलिटी एनहेंसमेंट जो कोर्स है, जो कंपल्सरी कोर्स है, इसकी क्रेडिट देख लेते हैं। हर एक जो है 4 क्रेडिट का होता है एंड आई विल टेल यू कि ये वाला तो सबको लेना ही होता है, इनमें से आपको कोई एक लेना होता है। तो 4 क्रेडिट का तो ये हो जाता है और इनमें से कोई अगर आप एक लेंगे तो मतलब 4 क्रेडिट का ये हो जाएगा। तो ये आपके होते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज और ये आपको फर्स्ट ईयर में ही लेने पड़ते हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर के, या तो ये लीजिए या फिर दोनों में से कोई एक पिक करिए, एनी वन। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। अब बात आती है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स बेसिकली आपका वैल्यू बेस्ड या फिर स्किल बेस्ड कोर्स होता है। अब ये कंप्लीट आपको एक लिस्ट मिलेगी एंड में, एक टेबल जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में कितना क्या है सब कुछ कंप्लीटली बता दिया जाएगा। बस अभी डिटेल में थोड़ा जा रहा है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके इंपॉर्टेंट के लिए वो है तो ईयर ऑफ प्रोग्राम है। सेकेंड ईयर के अंदर आपको बेसिकली इसकी चीजें मिलती हैं। तो सेकेंड ईयर में हमारा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होता है। तो एक आपको यहाँ मिल जाएगा टूरिस्ट एंथ्रोपोलॉजी और फोर्थ सेमेस्टर में आपको मिल जाता है पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी। बेसिकली सेकेंड ईयर में आपको दोनों कोर्स मिल जाते हैं स्किल एनहेंसमेंट की तरफ से। अब हम इनके क्रेडिट सिस्टम देख लेते हैं। दोनों ही 4 क्रेडिट्स के बेसिकली ये दोनों हमारे पास ये कोर्सेज हमें मिलेंगे। ये हमारा दोनों के दोनों सेकेंड ईयर का है। ये देखिए, आगे चलते हैं। बस अब लास्ट कोर्स जो बचा है वो है जेनेरिक इलेक्टिव है और ये वाले जो कोर्स होते हैं टोटल 4 होते हैं और ये आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ से कोर्सेज तैयार किए जाते हैं और 2-2 करके डिवाइड किए जाएंगे। तो आप कोड देख लीजिए और इनका नाम देख लीजिए, इंडियन सोसाइटी एंड BGDG 172 जेंडर सेंसिटाइजेशन, PSOC 173 रीथिंकिंग डेवलपमेंट एंड BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको जो ये दोनों है ये आपको फर्स्ट ईयर में मिलते हैं और ये जो दोनों है ये आपको सेकेंड ईयर में मिल जाती है। तो इस हिसाब से जो है इसके कोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब मैं आपको जो है इनके क्रेडिट समझा देती हूँ कि कितने कितने क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं। लेट मी शो यू। ये टोटल है 4 थे, 2 आपके जो है ये जो 2 हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला आपके फर्स्ट ईयर का है और दोनों ही 6-6 क्रेडिट्स के हैं। और ये वाला आपके सेकेंड ईयर का है और दोनों ही 6-6 क्रेडिट के हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेबल की। तो ये है वो टेबल जिसके अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोड मिल जाएगा। आप वीडियो को रिवाइंड करना और आपको जो है उनका नाम भी मिल जाएगा पीछे। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिकली जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो ये रहा, 2 सेमेस्टर को क्लब कर दीजिए, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको BPCC 101 और BPCC 102 कोर कोर्सेज में मिलते हैं। डिसिप्लिन इलेक्टिव इसमें DSC में आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है। एबिलिटी एनहेंसमेंट में आपको BWay मिल रहा है और स्किल एनहेंसमेंट में कुछ नहीं है और जेनरिक के अंदर आपको एक मिलता है। और टोटल आपका जो बेसिकली ये पूरा इसका देखें तो टोटल आपका जो फर्स्ट ईयर होगा ये 44 क्रेडिट्स का होगा। फिर ऐसे आप अपना ये सेकेंड ईयर का देख लीजिए। सेकेंड ईयर में आपको यहाँ पे कोर कोर्सेज मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे फिर आपको 2 फिर 2 और टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 28 + 28 क्रेडिट। फिर आपका आता है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपके 4th 5th और 6th बेसिकली सेमेस्टर को क्लब कर दीजिए। ये आपके कोर कोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, बस आपके यहाँ पे कोर कोर्सेज होते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 24 क्रेडिट और 24 क्रेडिट। ये टोटल आपका मैं क्लियर कर देती हूँ और आप इसको लिख भी सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का पूरा एक पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और यस, तो अब आपको क्रेडिट का सिस्टम पता है। क्रेडिट का मतलब एक तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि आपको कितना
टाइम, कितनी स्टडी का टाइम जो है आपको एक पर्टिकुलर कोर्स में डिवोट करना होगा। तो अगर आपका कोई कोर्स 6 क्रेडिट का है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि आपको 120 स्टडी आवर्स उस पर्टिकुलर क्रेडिट के जो कोर्स है उसको आपको देने पड़ेंगे। तो क्रेडिट सिस्टम सिर्फ ये होता है। अब बात आती है फीस की। तो फीस आपकी जो टोटल फीस होती है वो होती है, आई विल शो यू, 9,600। तो देखिए आपकी टोटल फीस है वैसे, और ये आपकी प्रैक्टिकल की है, क्योंकि साइकोलॉजी है तो इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपको उसकी फीस सबमिट करनी पड़ती है। तो इन दोनों को अगर आप क्लब कर देंगे तो पूरे 3 साल की जो आपकी फीस है वो पता चल जाएगी। अब अगर इन्होंने जो है इस फीस को तोड़ रखा है, ब्रेक डाउन कर रखा है 3 इयर्स के अंदर। तो आपको जो फर्स्ट ईयर में फीस पे करनी पड़ती है वो होती है 3,200, और 600 होती है आपकी प्रैक्टिकल की। और जो, क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो आपको रजिस्ट्रेशन फी भी देनी पड़ती है 200। तो टोटल 600 प्लस 3,200, बेसिकली 3,800। बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 4,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। फिर आपको सेकेंड ईयर के अंदर सिर्फ 3,200 और 600 पे करनी पड़ती है, और फिर थर्ड ईयर के अंदर भी ऐसे। तो इस हिसाब से आपकी टोटल फीस जो 3 साल की जाती है वो इन दोनों को अगर आप क्लब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो इस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर है। बाकी यूनिवर्सिटीज से देखें ओपन के अंदर तो उससे तो बहुत कम आपको यहाँ पे करना पड़ता है। अब बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो है अपने इग्नू के अंदर बीए साइकोलॉजी के अंदर आपको जो है असाइनमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं अपने हर एक ईयर के। फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स आते हैं, आपको एक डेट दी जाती है और उस डेट से पहले आपको अपने सारे असाइनमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है तो अपलोड करने पड़ते हैं, नहीं तो अपने स्टडी सेंटर जो आप सिलेक्ट करते हो एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। तो आपको असाइनमेंट्स अच्छी तरह हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करके देना पड़ता है, क्योंकि असाइनमेंट की 30% मानी जाती है हमारे एग्जाम के अंदर। तो असाइनमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आपके फाइनल जो मार्क्स बनेंगे उसके अंदर असाइनमेंट्स के मार्क्स जो है इंक्लूडेड होंगे। तो आप ये इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हो। बस यही इसमें से ब्रीफ बात थी कि आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट आउट करने ही पड़ते हैं। ओके, सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड थैंक्स अ लॉट गाइस। अगर आपका अभी भी कोई बीए साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम इग्नू से कोई एक क्वेश्चन या कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस। इफ यू फाइंड इट किसी भी तरीके से आपको, इफ यू फाइंड इट any way, in any sense, if you found my video helpful, do subscribe, like and share the video, and yes, do subscribe the channel. You can click here also जितना भी अब तक आपने इंफॉर्मेशन देखा वो सब कुछ इग्नू के प्रोस्पेक्टस से था। आप खुद भी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो वन द लास्ट थिंग कि बीए साइकोलॉजी ऑनर्स की बहुत सारी वीडियोस लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। गो टू द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट पे जाकर अपने जो है सेक्शन लेक्चर्स लेना शुरू कर सकते हैं अपने स्टडीज के लिए। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड यस, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, बिकॉज सारे यूनिट्स आएंगी, सारी क्लासेस होंगी, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, फ्री है बिल्कुल, और यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स अ लॉट गाइस।